The EV industry has taken birth from China. आज भी सेल्स सारी चाइना से ही आती हैं। Any electric vehicle company is buying the cells from China only. Not only in India, around the world. वो जो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कोविड के बाद, डिड दैट इम्पैक्ट योर बिजनेस इन एनी फॉर्म और शेप? कस्टम का कुछ दिन का एक डिसीजन था कि we cannot give you in writing, but yes, it is an unofficial communication. बट डू यू थिंक दैट ईवी रिवोल्यूशन इज रियल? China में every year they hold Canton Fair twice a year. So that's the first entry point to understand कि China क्या करता क्या है. Every product is there. बंदे को ब्रांड भी बनाना चाहिए चाइना से प्रोडक्ट लाके। बिना ब्रांड तो कुछ करना ही नहीं चाहिए. Because आपने जो भी मेहनत करी वो चाइना वाले के प्रोडक्ट पे करी. रिकॉल नहीं आएगा आपका. आपने 2 ईवी कार ली हैं वर्सेस आपके पास पेट्रोल भी आपने चलाई है। व्हाट इज बेटर? Obviously electric car is better. एक वो है ना कि रात को चार्ज कर लिया दिन भर चलाओ, पेट्रोल भरने की कोई स्ट्रेस ही नहीं. I send my car for service and 80 रुपीज का बिल आया सर्विस कराने का. दैट्स इट? Yes. बट आप भी इस बिजनेस में थे, आपकी भी कुछ बैटरी तो फटी। मैं नहीं बोलता हमारी बैटरी कभी नहीं फटी. जरूर फटी थी. आग लगी थी. सड़कों में आग लगी, स्कूटर जल गए. Guys, welcome to another electrifying episode of the Akash Gupta Show, powered by 100 Unicorns, our new sponsor. India ke one of the top accelerators focusing on early stage startups. Backed by Venture Catalyst, a global startup accelerator. अब सभी startups के लिए एक बहुत ही काम की बात. ये अपने fund 1 से अभी तक 145 startups में $100 million का investment कर चुके हैं. In industries like fintech, edtech, Web3 and deep tech. Some of their portfolio firms are Videoverse, Zingbus, Snapmint, TrueNative, BlueSmart, and even आपका अपना Zip Electric. And now they are on to their second fund where they are looking to invest $200 million in 200 startups this time in sectors like D2C, Agritech, SaaS, and FinTech. So if you are a startup and you're looking for funding, then you know who to reach out to. Great. So we have another guest today. First, Sardar ji on the podcast. Welcome, Samarth ji. Thank you. Samrath, right? Samrath, yes. Samrath. So good to see you, Samarth Kochar. समर्थ, आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं बहुत टाइम से, राइट? वी आर बाइंग बैटरीज फ्रॉम यू. यू आर इन द ईवी इंडस्ट्री. तो आज बातें हम ईवी की करेंगे. हम बातें करेंगे बिजनेस की. कैसे एक 20 साल पुराना, ऑलमोस्ट 18 साल इज हाउ लॉन्ग यू बीन बिल्डिंग अ बिजनेस. तो ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है आज स्टार्टअप वर्ल्ड से, तो वो बातें करेंगे, राइट? एंड सो वेलकम वंस अगैन. दिस इज द आकाश गुप्ता शो. तो अब बातें करते हैं बिजनेस की और ईवी की, राइट? तो आप समर्थ थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए कि आप कैसे आप इस धंधे में आए, विच इज ट्रॉनटेक, विच इज मेकिंग बैटरीज. आई थिंक यू आर वन ऑफ द लार्जेस्ट बैटरी प्रोड्यूसर्स राइट नाउ इन द ईवी सेगमेंट, स्पेशली 2-wheelers, 3-wheelers, राइट? तो बताइए जरा कैसे यहाँ तक आए. So the journey started in 2006. So actually Trontec was born in 2004. The brand came in 2004, but the company Trontec Electronics Private Limited was registered in 2006. So brand कैसे आया? So my father used to import, he used to manufacture some electronic components called resistors. So the machines used to come from a company called Trontec Taiwan. So that company is wind up now, but कोई ताइवानी का ओनर था, उसकी कंपनी थी. सो मैं पढ़ाई करके गया कंपनी में. बीच में जाता था व्हेन आई वाज यंग. आई यूज्ड टू गो टू द फैक्ट्री एंड सी हाउ द थिंग्स आर ऑपरेटिंग. सो देखा वहाँ पर मुझे ट्रॉन्टेक नाम बड़ा फैसिनेटिंग लगता था, डिफरेंट नाम. सो मैंने कहा कि चलो ये नाम कॉपी करते हैं. सो कॉपी करा, नाम बोला. इंडिया में कोई नहीं ढूंढने आएगा. इंडिया में कोई ढूंढने नहीं आएगा. So that company, the owner died in I think 2008. So the company is already shut now. So the brand came from there. So there is no meaning of the name. The Trontec is the birth of Trontec brand came from there. The journey. So I joined my father's business. Electronic components बनाते थे. छोटा धंधा था. टर्नओवर बहुत छोटी थी. प्रॉफिट बहुत मोटे थे लेकिन टर्नओवर बहुत छोटी थी. सो मुझे वो छोटी टर्नओवर, प्रॉफिट बहुत मोटे थे बट टर्नओवर छोटी थी, नोट किया जाए. यस. सो मुझे वो इतना फैसिनेट करा नहीं कि ट्रांजैक्शन छोटी छोटी हो रही हैं. इवन दो क्या बेचते थे? resistors. So they were used in TV, radios, small component. It is used in technically every electronic circuit. ताइवान में वही सब बिकता था, सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स. ओके, That was the time. So शुरू किया, मज़ा नहीं आया. So उस टाइम पे यूपीएस का बड़ा एकदम से ट्रेंड आया था, द कंप्यूटर यूपीएस एज अ बैकअप सोल्यूशन. So that was the time when computers came in and the
पहले कंप्यूटर्स आए, फिर बाद में बैकअप का ट्रेंड आया कि कंप्यूटर शट डाउन हो जाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे, इतना महंगा कंप्यूटर है, 1 लाख का कंप्यूटर है और अगर शट डाउन होगा तो ख़राब हो जाएगा। ये बड़ा डर लगता था, सच्ची में वैसे खराब होते हैं? या ख़राब तो उस टाइम की चीज़ें थी तो ख़राब होती भी थी। क्योंकि ये एसी में भी हमेशा लोगों को, जब बचपन में मुझे आता था कि भाई एसी एकदम से बंद ना हो जाए तो वो लगाते थे, स्टेबलाइजर लगाते थे। तो अब थिंग्स हैव रियली इम्प्रूव्ड इन 20 years। सो अर्लियर ग्रिड्स वर नॉट स्टेबल, एकदम से कभी हाई पावर आ रही है, कभी लो पावर आ रही है, बट थिंग्स हैव रियली, अब आज की ज़रूरत नहीं है। आज हमने तो कोई लगाया नहीं, कोई स्टेबलाइजर लगाते नहीं है। हमने तो सारे बेच दिए रद्दी के भाव। So UPS का उस टाइम ट्रेंड आया, so there was a huge demand for the batteries in the UPS because the batteries were never made in India for UPS. So my father took me to China. He said कि तेरे को काम करना है. He took me to China, introduced me to, even for the resistors he took me to China, and 2004 I went first time to China, introduced me to some couple of suppliers, and then 2005 he took me again to China for the battery business. So बैटरी काम शुरू किया, 600 पीस मंगाए चाइना से, आते ही बिक गए, बड़ा मज़ा आया, एट अ वेरी गुड प्रॉफिट। ये यूपीएस बना लिया, यूपीएस वाली बैटरी ट्रॉन्टेक नाम से डे चाइना ने बना के भेज दिया, आया, आते बिक गया, बड़ा मज़ा आया, अच्छा प्रॉफिट भी मिल गया। 5000 पीस मंगाए, बिक गया, बड़ा प्रॉफिट, अच्छा मज़ा आया। ये क्या हो रहा है कि व्हाट माय फादर वाज डूइंग टर्नओवर फॉर, आई मीन मंथली टर्नओवर, वो आई कुड डू इन 1 or 2 ट्रांजैक्शंस ओनली। सो मज़ा आने लग गया। फिर हमने कंटेनर मंगाना शुरू करे, 1 मंगाओ, 2 मंगाओ, 3 मंगाओ, सो जर्नी स्टार्टेड। उसके बाद फिर 2008 में सम पीपल केम टू अस कि आप यू आर इम्पोर्टिंग अ लॉट ऑफ बैटरीज, सो देयर इज आल्सो अ मार्केट फॉर मोटरसाइकिल बैटरीज व्हिच कम फ्रॉम चाइना। मोटरसाइकिल, सो द जो कन्वेंशनल मोटरसाइकिल, हाँ, वो जो एक बैटरी होती थी जिसमें वो 2 तार लगते थे, हाँ 2 तार वाली वो बैटरी। सो आप वो क्यों नहीं मंगाते, चाइना से बहुत बैटरी आती है वो वाली। सो आई वेंट बैक टू माई सप्लायर, कहते हम बनाते हैं, वी आर अ लीडिंग प्लेयर इन दिस। सो मैंने कहा ठीक है, तो 2 मुझे, वो मंगाई, वो भी क्लिक कर गई, मज़ा आ गया। सो वो मंगाई, बेची, एंड सडनली क्या हुआ कि वी वर वर्किंग एट, हमारा प्रॉफिट हमेशा बड़ा नॉर्मल, वी हैव ऑलरेडी हैव अ पॉलिसी, बहुत एक्सेप्शनल प्रॉफिट पे काम नहीं करना, नॉर्मल प्रॉफिट काम, लंबा काम करना है। सो हमने आते ही वी फ्लडेड द मार्केट, करोल बाग मार्केट में चलती थी ये। सो लॉट ऑफ स्मॉल करोल बाग प्लेयर्स दे केम टू अस कि सर आपने मार्केट सारी ख़राब कर दी, वी आर वर्किंग एट 50-60% मार्जिन, आपने पूरी मार्केट ही कचरा कर दी, क्या कर दिया आपने ये? अच्छा, करोल बाग वाले ये सब बेच रहे थे? येस, दे वर ऑलरेडी डूइंग इट। सो आपने ये मार्केट कचरा कर दी है। मैंने कहा क्या करें, हमारा तो एपेटाइट इतना है। सो चलो, तो कितना प्रॉफिट था, थोड़ा आइडिया? अराउंड 15% के आसपास था। 15% प्रॉफिट में बेच रहे थे, जबकि लोग 30-40%। एंड उस टाइम पे 15% बहुत अच्छा प्रॉफिट होता था। करेक्ट। आप स्केल में बात कर रहे हो, कंटेनर्स में बेच रहे हो। सो वो कहते हैं आप एक काम करो, आप हमें मंगा के दे दो, आप इतना सस्ते में बेच रहे हो, हम आपसे ले लेते हैं, एंड यू हैव अ गुड नेगोशिएटिंग पावर व्हेन यू डील विद द कंपनी, सो विच वाज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन चाइना। सो आप उससे हमें मंगा के दे दो माल कुछ। एंड they were actually buying at a very high price from different company. So because of my relation since 5-6 years with that company, so they gave me a good price for the motorcycle batteries also. So they said कि आप हमें मंगा के दे दो, and I told them देखो मेरी कॉस्ट इतनी है, फॉरन 100 रुपये की कॉस्ट मैं 115 में बेच रहा हूँ। वो कह रहे हमारी कॉस्ट ही हम 110 में खरीद रहे हैं, सो आप एक काम करो, आप ही हमें दे दो ये। आई हैड अ बेटर नेगोशिएटिंग पावर। सो दैट्स आवर बेसिकली, हमारा डीएनए में है कि हमारी कॉस्टिंग हमेशा बहुत फाइन होती है, इवन टुडे। स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशंस based on our volumes, based on our skills. So we started importing and selling them container कि किसने 2 बोल दिए, 3-4 बोल दिए। So but we always did bulk deals, हमें कभी छोटा काम करने में मज़ा नहीं आता था, शुरू से ऐसा था बल्क डील्स ही करनी है। जर्नी चलती रही एंड देन 13 में इंडिया में ई रिक्शा आई। So we had a good connect in China. So I went to China and found the best company who was the best in e-rickshaw batteries. So उनसे बात करी कि हमें बैटरी चाहिए इंडिया के लिए, सर ले लो कोई दिक्कत नहीं है। And every time we are very clear, every battery which will come will only be in Trontic brand. ऐसा कुछ नहीं है कि हम बिना ब्रांड के मंगाएंगे या उनकी ब्रांड पे मंगाएंगे। ब्रांड हमारे चलेगा हमेशा, अपने ब्रांड में मंगाई। सो उस टाइम क्या था कि पीपल डिडंट नो, ई रिक्शा तो ले आए थे, बट उन्होंने बैटरी क्या करी कि यहाँ पर लोकल ट्रक बैटरी और द बस बैटरी वो लगानी शुरू कर दी। ऑल ऑफ दोज बैटरी। किसने? ई रिक्शा वालों ने। वो बैटरियाँ नहीं लेके आए, जो रिक्शा वाले थे खाली उन्होंने ई रिक्शा ले आए, लेकिन बैटरी तो ऑब्वियसली वाज डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर।
सो उन्होंने बैटरी बनाई है यहाँ पर, जो भी थे एक्साइड, एमरॉन, जो भी पैंथर, 5-6 कंपनियाँ थी, उन सबसे बात करी। उनको भी समझ नहीं थी। उन्होंने क्या करा कि जो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था उठा के दे दी इनको कि आप लगा लो इसको। वो लगा के बैटरी 3 महीने में फेल, 2 महीने में फेल, बिकॉज ई रिक्शा रिक्वायर्स अ ट्रैक्शन बैटरी, वाइल दीज वर ऑल अ स्टार्टिंग बैटरी। दे रिक्वायर्ड अ क्रैंकिंग करंट की स्टार्ट करना है व्हीकल को, उसके लिए। हमारी गाड़ियों में जो बैटरी होती है, इट्स नेवर फॉर ट्रैक्शन की, उसको उस पर चलती है। इलेक्ट्रिक कार्स ऑब्वियसली नाउ टेक्नोलॉजी हैज चेंज। आई एम टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशनल आइस इंजन व्हीकल्स। सो द बैटरी इज ओनली यूज फॉर क्रैंकिंग, स्टार्टिंग द व्हीकल। हाँ, वो जो एक करंट आता है और बस इंजन को फायर करना है बेसिकली। So that was the purpose. But this was basically a different use case altogether. And China had already excelled that. Even China had done this experiment. They started with using the wrong battery. But China 10 साल में सीख चुका था. They had already prepared the right battery. So हमने वो मंगाई, हमने बेची. Perfectly fine. लोग कहते हैं कि आपकी बैटरी तो बेस्ट है बिल्कुल ये. Our battery clicked. these were lead acid batteries. लेड एसिड बैटरी अभी हम लेड एसिड पे ही हैं अभी तो। बैटरी क्लिक कर गई तो ऑल द OEMs केम टू अस कि हमें बैटरी चाहिए, वाली बैटरी चाहिए। फिर हमने सेम वैसे शुरू कर दिया कि वी स्टार्टेड डूइंग अ हाई सी सेल टू देम कि आप सो वी आर रिपोर्टिंग अ बिग वॉल्यूम इन दैट टाइम कि आप फॉर एग्जाम्पल OEM A आया, OEM B आया, सो दे वुड कम कि हमारे बुकिंग कराने आते थे, आपके लिए कंटेनर, आपके लिए कंटेनर, उनको सीधा हाई सी कर दिया, उनके घर पे माल पहुंच जाता था और वो सर्विस यूज टू प्रोवाइड, आफ्टर सर्विस वाज आवर्स, बट उनके घर पे बैटरी पहुंच जाती थी। एंड दिस जर्नी वेंट वेरी वेल फ्रॉम 13 to 18 आई वुड से। सो ई रिक्शा की बैटरी वी एक्सेप्ट। कितनी बैटरियां बेचते थे तब? उस टाइम पे वी वर सेलिंग क्लोज टू 20,000 बैटरीज अ मंथ। 20,000 बैटरीज अ मंथ? 2017-18 की बात है। Yes, so we're selling 20,000 batteries. And were you the only one or there were many So others? there were few players, but not as big and as good as us. You were the biggest. People used to tell us कि सर मैं एक साइड में गया था, वहाँ पर उन्होंने आपकी बैटरी काट के रखी हुई है। मैं ईस्टमैन गया, वहाँ पर उन्होंने आपकी बैटरी खोल के एक्सपेरिमेंट कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। But ऐसा क्या सीक्रेट? Because you were getting it from China. So it was not my, I would say it was never my creation. मैंने कुछ उसमें innovate नहीं किया, but I just got the right product. I was just getting the right product from the right company. वो आपने सही टाइम पे क्रैक कर लिया? And people tried to copy that. उन्होंने कॉपी करा, कर नहीं पा रहे थे, बट येस उन्होंने कॉपी करा। एंड कॉपी में भी क्या होता है कि आप कुछ ट्राई करते हो, मार्केट में डालते हो, रिजल्ट लेते हो, फिर फेल होते हो, फिर दोबारा कुछ। सो 19 में आके फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो हमने फिर 17 में हमने लिथियम आयन बैटरी लॉन्च करी फॉर ई रिक्शा, बिकॉज वी आर वेरी प्रोमिनेंट इन द ई रिक्शा स्पेस। सो हमने कहा कुछ अब डिफरेंट भी करना चाहिए, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, थिंक। लिथियम आयन पे आने से पहले मैं एक बार फिर से आपकी जर्नी के पीछे जाना चाहता हूँ, राइट? तो आप दिल्ली से हैं, यू बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, या, एंड योर डैड वाज ऑलवेज अ बिजनेसमैन? He was always a businessman. ऑलवेज अ बिजनेसमैन। तो आपने जब स्कूलिंग करी और उसके बाद क्या किया, मतलब? So after my schooling, I did my graduation from Delhi University. Then I did so schooling करते करते I used to graduation करते करते I started working थोड़ा बहुत। काम किया कहीं? नहीं, काम अपना ही काम किया कि I used to go to Lachora market, collect some electronic components and supply to one of 2-3 factories to make my pocket money. अच्छा So I stopped taking money from my father after my school. अच्छा, क्यों? बस हाँ, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? just me. I just have a elder sister. एल्डर सिस्टर। अच्छा, तो मतलब बचपन में बिजनेस का कुछ था? क्योंकि देखो, मैं व्हाट आई एम गेटिंग एट इज अ लॉट ऑफ किड्स यूजुअली डोंट जॉइन देयर फादर्स बिजनेसेस बिकॉज समहाउ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो जाते हैं कि यार ये क्या है। जस्ट सिंस यू कम इन फ्रॉम अ सेम बैकग्राउंड वेयर योर डैड वाज बिल्डिंग बिजनेस, और कब से बना रहे थे आपके डैड? Since 1980. 1980s से वो बिजनेस, यही बिजनेस या कुछ और? So पहले he was into imports. ट्रेडिंग का बिजनेस? Trading का business था, then he started making the electronic components. इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो आपको मतलब क्या यही ऑप्शन था कि फादर्स बिजनेस ही ज्वाइन करना है, या कुछ और भी विचार आते थे? कोई और विचार कभी आए नहीं थे। क्लियर था कि फादर्स बिजनेस ही ज्वाइन करना है? So my father had 2 more brothers, but he had split with them in 1991. So obviously I had the responsibility to take that business forward. So उसको जो करना था। और मतलब बिजनेस में बचपन में भी इन्वॉल्वमेंट था कुछ? हाँ, I used to go to the factory just for थोड़ा बहुत ऐसे ही बस खाली फीलर के लिए, but not to work.
बट एक्चुअल धंधा शुरू किया आफ्टर फिनिशिंग माई स्कूल. विच इज स्कूल, कॉलेज वॉलेज. कॉलेज भी जाता था लेकिन दोपहर पार्ट टाइम में. You became a businessman just after your school. आई यूज्ड टू गो टू लाजपरा मार्केट, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खरीदता था एंड आके सप्लाई करता था टू फैक्ट्रीज, स्मॉल फैक्ट्रीज, और उनसे पैसे लेता था, फिर वो दोबारा रोटेशन करता था. DNA में है मतलब. या एक बात बताओ कि your upbringing and you being close to your father, watching him very closely, did it, if this would not have been your upbringing, तो क्या होती जिंदगी? इसमें एक ट्विस्ट भी है. सो 2010 में आई हैड अ पैशन टू बिकम अ पायलट. अच्छा. सो आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि मुझे पायलट बनना है. सो कहते हैं कि ठीक है. सो ही गॉट मी इंट्रोड्यूस टू समबडी जिसने मेरा स्कूल, आई वॉज एन एयरफोर्स स्कूल. सो अच्छा, आप एयरफोर्स स्कूल में गए थे. so somebody, he was like a group captain in Air Force, so he was my father's friend and he got me into the school. So my father took him there कि हाँ मिलने के लिए, he wants to become a pilot. So उनका ठीक है, इसको फिर उसकी एजुकेशन कराओ पायलट वाली, इसको साइंस करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो कराओ इसको फिर. तो मैंने कभी साइंस तो ली नहीं, कॉमर्स ले लिए. तो कहते उसको कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कराते हैं इसका फिर. तो अभी तो कर, अपना जो कर रहा है, तो कॉमर्स कर रहा है तो कर फिर, लेकिन कुछ जुगाड़ जुगाड़ कर देंगे, दिल्ली में सब हो सकता है ना. कहते करते कराते हैं. अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई वाज इन 12th, सो दैट अंकल्स सन पास्ड अवे इन अ एयर क्रैश. सो ही वाज अ पायलट एंड ही पास्ड इन एयर क्रैश. सो माय पेरेंट्स सेड बिल्कुल भी नहीं, स्टॉप ऑल थिंकिंग अबाउट बीइंग अ पायलट, सब कुछ छोड़, अपना पढ़ाई में ध्यान दे और अब तूने धंधा ही करना है. ड्रीम्स जो थे आपके वो सब शैटर हो गए एंड यू कंटिन्यू टू बिल्ड व्हाट यू आर बिल्डिंग, है ना. तो बट आपने ये सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर ये अपब्रिंगिंग नहीं होती तो क्या आप बिजनेस ही बना रहे होते या कुछ और होती जिंदगी. जस्ट थिंक, अगर मेरी DNA मेरी फैमिली में नहीं होता तो क्या पता मैं जॉब कर रहा होता, कहीं पर पढ़ाई करके जॉब कर रहा होता. कभी सोचा नहीं ऐसा, लेकिन बट क्या पता पायलट ही होता. बट यू एंजॉय बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेसमैन वेरी मच, थरोली. thoroughly. बट क्यों, व्हाई डू यू एंजॉय बीइंग अ बिजनेसमैन? जैसे मतलब दिन भर कितनी मगजमारी चलती रहती है, जैसे मैं देखता हूँ, मतलब देयर इज नो रेस्ट. So I enjoy that. यू एंजॉय दैट? I enjoy that pain. व्हाई? नशा हो गया वो. अब वो अगर so even when I go on a holiday, so it's like कि मेरे लिए काम ही है सब कुछ. अब बाद में जाके कर लेंगे जो एंजॉय करना है, अभी तो आज तो काम ही करना है. बट ऐसा मतलब कब तक, व्हाट एज? जब तक साथ दे रही है. तक है जहाँ. हाँ, मतलब ये मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बट एंड हम हमेशा ये बोलते हैं कि आगे एंजॉय कर लेंगे, आगे एंजॉय कर लेंगे. अब 20 साल के थे तो भी मेहनत कर रहे थे, पढ़ना है, कुछ नंबर लाने. मेरा तो अलग सीन था, मेरा तो कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, तो मेरे पास तो ऑप्शन ही सिर्फ पढ़ाई का था कि भाई पढ़ाई करके कुछ ना कुछ बनूँ तो आगे कर लेंगे. वो आगे, सिंस यू come in from a very different background, तो you also feel the same, the DNA is similar, है. बिजनेस में कुछ वो नहीं है, एंड गेम नहीं है. एंड गेम तो है नहीं. क्योंकि नशा है ना ये. Yeah, you can't leave this. You enjoy the daily rigmarole so much. I enjoy that pain. You enjoy that pain. और अगर पेन नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा. डेली का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए और उसको सॉल्व करके ही मज़ा आएगा. That's business. Lovely. So I enjoy that stress. So stress मेरे लिए is not that stress. Stress is like a fire in my mind कि इसको solve करना है. उसके बिना मज़ा नहीं आएगा. जीने का मज़ा नहीं आएगा. अगर इजी हो गया मान लो सब कुछ, फिर वो क्या है. तभी आप जैसे लेड एसिड में आपने कहा कि ये तो अच्छा चल रहा है, अब लिथियम आयन भी करता हूँ. तो लेट्स गेट बैक टू लिथियम आयन. तो क्यों आप लिथियम आयन में आए, लोगों को समझाओ थोड़ी ये टेक्नोलॉजी. सो न्यू टेक्नोलॉजी सुना था उसके बारे में कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है कुछ, तब मुझे भी कुछ नहीं पता था उस टाइम पे. नोबडी इवन न्यू अबाउट लिथियम आयन इनफैक्ट. सो चाइना गया, ढूंढा कि लिथियम आयन भी प्रोडक्ट है कुछ. वहाँ पर ढूंढा फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री सूटेबल है, उनसे प्रोडक्ट एक डिज़ाइन कराया. सो लेके आए यहाँ पर, एक पीस लेके आए, रिक्शा में लगाया. सो उनको पहले भी क्या किया, जब हमने अपनी लेटेस्ट लॉन्च की थी रिक्शा बैटरी, सो वी कॉल 10 ई रिक्शा ड्राइवर्स. उनको बोला कि काम करो, अपनी बैटरी उतार दो, हमारी बैटरी ले जाओ, आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे हैं, हमें खाली इसका रिजल्ट देते रहना, अपना नंबर दे दो, हम आपसे इसका रिजल्ट पूछते रहेंगे क्या रिजल्ट था इसका. आपको कुछ नहीं करना, ये हमसे ले जाओ. अगर फ्री में दे दी,
और अपनी छोड़ जाओ यहाँ पर। पहली बार जब लेके आए? और अगर आपको परेशानी है, आपको वापस आपकी बैटरियाँ पड़ी हैं, पर उसको चेंज कर लेना। लिथियम आयन में भी 5 बैटरी मंगाई, उनको बोला भाई काम करो, ये लेके जाओ। ओके, बट दे डिडंट बिलीव कि ये काम करने वाली चीज़ है, बिकॉज इट वाज आयरन बॉक्स अंदर। क्योंकि नॉर्मली लोगों को आदत होती है कि अ बैटरी इज़ लाइक अ बैटरी, उसमें से पानी निकल रहा है, इट लुक्स लाइक अ बैटरी, 4 होती हैं, वो इन्वर्टर वाली टाइप की। वाटर वाली बैटरी। ये एक आयरन बॉक्स लाइक संदूक, और वो उनको ट्रस्ट ना हो कि ये तो काम भी करेगी या कुछ क्या होगा, उसमें कोई डिस्टिल्ड वाटर भी नहीं डालना। कुछ डालना ही नहीं है। सो बट स्टिल किसी को बोला कोई परेशानी, हम बैठे हैं, तू लेके जा। उसका ठीक है, चलती रही, चलाई थोड़ी। देन वी लॉन्च्ड पायलट ऑफ 100 बैटरीज इन लखनऊ। वो सक्सेसफुल रहा आपका 10 बैटरी वाला? वो ठीक चल रहा था, वो तो चलना ही था, वो तो जब क्योंकि आप अच्छी बैटरी ले। अच्छी बैटरी लेके आए थे। सो लखनऊ में हमने लॉन्च किया। द बिगेस्ट चैलेंज वाज कि अब लखनऊ में बेचे कैसे। यहाँ पर तो हमने फ्री में दे दी थी 5 बैटरी। सो 100 बैटरी मंगा तो ली। उस टाइम पे लेड एसिड बैटरी थी 20,000 रुपये का एक सेट। दिस वाज कॉस्टिंग अस क्लोज टू 50,000 अ सेट। अब उसको बोले कि तू 30,000 फालतू दे। कहेगा क्यों? तो भाई आई एम वेरी हैप्पी, मेरे को नहीं चाहिए आपकी बैटरी है। सो व्हाट वी थॉट, आई स्पोक टू वन ऑफ द OEM कि उसको बोला कि इसको करना तो है, देखो क्योंकि कुछ नया नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सो लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। इसमें 10,000 आप कंट्रीब्यूट करो, 10,000 मैं कंट्रीब्यूट करूँगा। इसको ले आते 10,000 गैप पे। सो 20,000 की वो 30,000 तक हमने चेक कर लिया, 30,000 तक ही विल पे। 10,000 का आप डिस्काउंट अपने हिट ले रहे थे? हम ले रहे थे 10,000 का, OEM ले रहा था। जो ई रिक्शा बनाता है, क्यों एज अ बिजनेसमैन आपने तो कभी लॉस में बेचा ही नहीं? बट अगर कुछ नया टेस्ट नहीं कराएंगे किसी को तो उसको हमारी आदत नहीं पड़ेगी। अच्छा, बट यू वर सो कॉन्फिडेंट, बट व्हाई वर यू वांटिंग टू रिप्लेस लेड एसिड? So we could foresee that this is a new technology coming and we need to step in at the right time. अगर वही बात है कि अगर हम टाइम पे नहीं घुसे तो कोई और आगे निकल जाएगा। And now we claim that we are the first to launch a lithium ion battery in India for a e-rickshaw. हमने शुरू ही किया था उस समय धंधा, मुझे याद है। अगर ये नहीं करते तो कोई और ABC कंपनी आके बोलती कि हमने लॉन्च किया था, we are number 1, but now we claim that we are number 1 to launch a lithium ion battery in India for e-rickshaw. सो वो लॉन्च करा और पायलट वेंट वेल, 10,000 का लॉस किया। फिर नेक्स्ट लॉट में 5,000 रुपये का कर दिया, क्योंकि पीपल गॉट द फील ऑफ द बैटरी कि क्या है क्या। एंड द ई रिक्शा में क्या होता है, द बेस्ट पार्ट इज़ कि इट वर्क्स ऑन वर्ड ऑफ माउथ। ड्राइवर्स दे स्टैंड ऑन अपने जो उस पर खड़े होते हैं, आपस में बातें करते हैं, तेरी कितनी चलती है, मेरी कितनी चलती है, तेरी कितनी ख़राब होती है। और ये प्रोडक्ट थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ से पॉपुलर होना शुरू हो गया लखनऊ में। सो पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग। और एडवांटेज क्या था लिथियम आयन वर्सेस लेड, थोड़ा सा वो भी बता दो, व्यूअर्स वुड नॉट। सो 2 साल की वारंटी तो हम वैसे ही अपफ्रंट दे रहे थे। उस टाइम पे लेड की वारंटी 6 मंथ्स की वारंटी चलती थी, उस टाइम 6 महीने की वारंटी होती थी, हमने सीधा 2 साल की वारंटी दी। सेकेंडली, बिकॉज ऑफ पुटिंग अ लिथियम आयन बैटरी, उनकी बॉडी गलनी बंद हो गई, बिकॉज एसिड स्पिलिंग नहीं होती थी। सो उनकी बॉडी निकलती थी, दे वर वेरी हैप्पी। व्हीकल की बॉडी। Thirdly, the electrical systems of the vehicle, the e-rickshaw, stopped failing. पहले क्या होता था, लेड एसिड में बिकॉज ऑफ द वोल्टेज फ्लक्चुएशन, कभी एक बैटरी फेल हो गई है तो 3 वोल्ट बैटरी चल रही है, 36 वोल्ट आ रहा है कुछ, सो उनके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स फेल होने बंद हो गए। सो एवरीबडी स्टार्ट रियलाइजिंग कि दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड इज बेटर। ओके, सो एक्सेप्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई। सो हमने फिर 5,000 रुपये प्राइस बढ़ा दिया, और दोनों साइड से OEM एंड अस हमने। सो द गैप बिकेम 10,000। अब जब सामने डिमांड आई तो ऑब्वियसली वी कुड कमांड दैट। सो कर कुरा के 18 और 19 में फेम आ गया। सो फेम ने आते ही सारी गेम चेंज कर दी। फेम ने गैप को ब्रिज कर दिया पूरा। अच्छा, जो आप लॉस ले रहे थे, जो लॉस ले रहे थे, फेम से फंड हो गया वो। गवर्नमेंट की जो इंसेंटिव स्कीम थी, फास्टर अडॉप्शन ऑफ। सो वी हेल्प आवर OEM कस्टमर्स टू इसमें एनरोल करने के लिए हमने जो सपोर्ट चाहिए था हमने सब कुछ करा उसमें, एंड दे गॉट एनरोल्ड इनटू फेम। एंड फेम के साथ व्हीकल बेचने में अराउंड 30,000 वाज सब्सिडी दैट टाइम। सो 30,000 रुपये जब सब्सिडी मिली तो हमने अपना प्राइस भी अपना 50,000 पूरा एग्जैक्ट जो हमारा प्राइस है वो कर दिया। OEM ने भी अपना प्राइस पे वापस ले आए, बिकॉज गवर्नमेंट तो 30,000 दे ही रही है। सो 20,000 रुपये का लेड थी, 30,000 रुपये की सब्सिडी थी, तो आपको लेड के प्राइस पर लिथियम वैसे मिल रहा था।
So people were happy. That's an amazing plan by the government. So ये प्रोडक्ट क्लिक करना शुरू हो गया. उसके बाद फेम 2 आया और पुश मिला. अगेन चलता गया ये काम. एट द सेम टाइम जब ये फेम आया तो लॉट ऑफ कंपनीज वर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, दे अप्रोच्ड अस कि आप यू आर ऑलरेडी इन द बैटरी प्लेयर. सो जो भी आज के हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनीज, दे अप्रोच्ड अस कि आप हमें लिथियम आयन बैटरी सप्लाई करो. Because FAME had a mandatory condition, the battery has to be advanced battery. So advanced battery means a lithium ion battery. So they approached us कि आप हमें बैटरी, so lead acid में FAME नहीं था कभी भी. So they approached us कि आप हमें lithium ion battery supply करो, you have the skill set to make the battery. And उस टाइम पे हमने बैटरी असेंबली शुरू कर दी थी. Because the FAME had a condition the battery has to be made in India. So हमने तो बैटरी असेंबली शुरू कर दी थी यहाँ पर. All the skill set and the knowledge we got from a Chinese partner. एंड हमने यहाँ पे शुरू कर दिए. सो ग्रेजुअली पहले 100-200 बैटरी स्कूटर की बनानी शुरू करी. गॉट सबसे अच्छा रिस्पांस आया, धंधा चलना शुरू हो गया. स्टार्टेड लर्निंग, धीरे धीरे करके स्केल अप किया. एंड उसके बाद फिर हमने अपना जर्नी लिथियम आयन पे शुरू कर दी. 19 में हमने लेड एसिड टोटली बंद ही कर दी. डाइंग टेक्नोलॉजी हमने बंद ही कर दिया. टुक अ बिजनेस डिसीजन कि हमने बंद ही कर देना इसको. सो हमने फाइनली इसको बंद कर दिया. And since then we are growing at a rapid pace. We are number one in the lead acid battery, the e-rickshaw battery for lithium ion. Almost more than 50% market share in the lithium ion. Wow. For e-rickshaw. Two-wheeler we work with almost all the OEMs who make the electric scooters, except the top who make their own batteries. But except other OEMs, we supply to almost everybody. अच्छा, आज कितनी बैटरियाँ बनती है महीने में? So we're making close to 10,000 batteries for two-wheeler. Every month. 5,000 batteries for electric rickshaw. We are the sole supplier for Philips in India for their solar street lights. We are making batteries for drones. We are getting into batteries for telecom towers. And going forward, we have bigger plans also. Nice. तो मेरे पास कई सवाल आ रहे हैं, but maybe first I'll start कि I think a lot of business that you have built is on the back of smart buying and on the back of China, right? You will attribute a lot of buying. That's our USP. That's your USP. और आई थिंक बहुत लोगों ने ना चाइना से प्रोडक्ट ला के इंडिया में बहुत सारे धंधे बनाए, राइट? सही टाइम पे सही प्रोडक्ट उठा के ले आओ और चाइना इंडिया में असेंबल करके या फिर बेच दो, है ना? बट आवर वॉज नॉट कि बस जैसे कई लोग क्या करते थे कि CFL बल्ब इम्पोर्ट करके बेच दिए, सदर की बहुत सारी आइटम मंगाई बेच दी. वी वर नेवर अ प्योर ट्रेडर कि बस चाइना की. सो हमारा वी आर वेरी क्लियर, हमारा धंधा है बैटरी और बैटरी ही करना है बस. उसी के आसपास ही सब कुछ करना है. उसमें चेक करो कौन सी इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, उसको ग्रो करेंगे. अब ड्रोन इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, उसको बनाएंगे. टेलीकॉम इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, वो करेंगे. ऐसे वी आर वेरी फोकस कि करना तो बैटरी है. और जैसे ही जो धंधे बैटरी में आ रहे हैं उसको ग्रैब करेंगे और वो करेंगे. Maybe we'll talk and see that वो जो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कोविड के बाद, did that impact your business in any form or shape? इट वॉज बेसिकली कस्टम का कुछ दिन का एक डिसीजन था कि दे स्टॉप द शिपमेंट्स फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग द टॉप जाइंट्स. सबके लिए उन्होंने शिपमेंट बंद रोक दी थी फॉर आई थिंक 7 days. I went and met the Commissioner of Customs. He said we have an unofficial communication from the top office that we cannot release shipment from China. We cannot? We cannot give you in writing, but yes, it is an unofficial communication. So you'll have to bear with us for some days. And वो finally हो गया था, sort हो गया था. अब China is open, we can buy things from there. It's all working fine. See, the EV industry has taken birth from China. So nobody can ignore that कि इसके बिना काम हो सकता है. Any giant who's in the EV is working with. आज भी cells शायद सारी चाइना से ही आती हैं. Even any electric vehicle company is buying the cells from China only. Not only in India, around the world. Correct. Tesla is making their electric cars in China only. Shanghai, Tesla Shanghai. So Europe में अभी एंटी डंपिंग लगाई है 34% or 38% for the electric cars coming from China. And Tesla is majorly impacted because they were shipping all the cars from China to Europe. Oh my God. So we cannot ignore this fact कि
इफ़ अगर आप ईवी में हो तो चाइना के बिना काम, ईवी एंड सोलर टू इंडस्ट्रीज जो बर्थ ही चाइना से हुआ है, उसके बिना काम होगा नहीं. इवन द यूएस इज़ पुशिंग हार्ड कि वो उसको डीलिंग करे, लेकिन इट विल टेक लॉट ऑफ ईयर्स. ओके, गॉट इट. एंड आज की डेट में आपको लगता है कि कोई जाके चाइना से नॉट बैटरीज बट समथिंग न्यू दे कैन स्टिल गो एंड ब्रिंग इन फ्रॉम चाइना एंड बिल्ड अ बिजनेस? डू यू सजेस्ट दैट टू एंटरप्रेन्योर्स सिटिंग आउट? सी इट इज़, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आपको अपना लाइन बड़ा क्लियर होना चाहिए, करना क्या है मुझे. ऐसे नहीं कि बस मैं पहले आप क्या बेच सकते हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके आसपास वो जहाँ भी अवेलेबल, चाइना में ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. व्हाट यू, सो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स अप्रोच मी कि हम क्या धंधा करें, कुछ सजेस्ट मी समथिंग. आई ऑलवेज गिव देम वन पीस ऑफ एडवाइस कि तुम क्या बेच कर सकते हो, वो देखो. सो वन ऑफ माई फ्रेंड ही वांटेड टू डू लैपटॉप बैटरीज. सो मैंने कहा तू एक काम कर कि पहले नेहरू प्लेस स्टडी कर, एंड ही ओपन अ शॉप देयर. तो मैंने कहा अब तो बेच सकता है, तो देन गो टू चाइना, गेट इट हियर एंड देन स्टार्ट सेलिंग. सो मैं आपको बोलूँ कि आप क्या स्किल सेट नहीं है बेचने का कोई चीज़ का, जस्ट कि मुझे ये काम करना है, पहले तो स्किल सेट यू हैव टू डेवलप फॉर द सेलिंग, सेल्स आनी चाहिए कम से कम. उस प्रोडक्ट की. और मतलब एक चीज़ बताओ, मतलब कहाँ से अगर किसी को, एक जो यंग एंटरप्रेन्योर बैठा है 20-22 साल का, वही जैसे आप थे 2004 और 6 में, और वो बंदा चाहता है कि मुझे कुछ ऐसा बाइंग सेलिंग का बिजनेस करना है, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आने हैं, चाहे मैं चाइना जाऊँ चाहे यूरोप लाऊँ, तो वो उसमें क्या स्किल्स होने चाहिए, वो कैसे शुरू करे? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चाइना. चाइना में कोई ऐसी जगह है जहाँ जाना पड़ता है प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए? चाइना में एवरी ईयर दे होल्ड कैंटन फेयर ट्वाइस अ ईयर. सो दैट्स द फर्स्ट एंट्री पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि चाइना क्या करता क्या है, कैसे क्या, उस एवरी प्रोडक्ट इज़ देयर. चाहे वो आपके कपड़े हों, चाहे वो आपके कोई प्लास्टिक के आइटम हो, एनीथिंग. इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हो, मोटरसाइकिल्स हो, स्मार्ट वॉचेस हो, सब है. बी इट द स्पीकर, जो भी आपको रूम में दिख रहा है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन कैंटन फेयर. तो चाहे वो आर्टिफिशियल आपके, दिस में बी रियल बट आर्टिफिशियल प्लांट्स, सब मिलता है. सब मिलता है. कैंटन फेयर चले. कैंटन फेयर चले जाओ, जाके एक बार सर्वे करो, मिलो सप्लायर से, नेगोशिएट द प्राइस, वहाँ का प्राइस चेक करो, यहाँ का प्राइस चेक करो, देखो क्या गैप है बीच में, एंड स्टार्ट डूइंग अ स्मॉल ट्रायल बिजनेस. ट्रायल करो. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ट्रायल सक्सेसफुल हो गया, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप उसको कुछ ना कुछ लोकलाइज करो. यू मस्ट डू समथिंग लोकल हियर. some validation has to come from India. जैसे थोड़ा आइडिया. I mean, some assembling can happen in India, or something you have to do in India. तो बंदे को ब्रांड भी बनाना चाहिए चाइना से प्रोडक्ट लाके? बिना ब्रांड तो कुछ करना ही नहीं चाहिए. अपना ब्रांड एक आइडेंटिफाई कर लो, कुछ भी ब्रांड सोच लो, ABC कुछ भी सोच लो, लेकिन ब्रांड के बिना तो, बिकॉज आपने जो भी मेहनत करी वो चाइना वाले के प्रोडक्ट पे करी, पीपल विल नॉट रिकग्नाइज यू, कि आपने रिकॉल नहीं आएगा आपका. और सप्लायर बदलते जा सकते हैं बट आपका ब्रांड नहीं बदले. So that's what we did. So we kept on changing suppliers but never changed our brand. So we added more products but people identified us as Trontec. मेक सेंस. तो ये करना चाहिए किसी को चाइना से बिजनेस बनाना हो. कैंटन फेयर जाओ, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो, सैंपल लेके इंडिया में पहले बेचो, अगर चल जाए तो और बल्क में लाओ और ब्रांड बना दो एंड स्टार्ट सेलिंग. बन गया. Day 1 पे सैंपल पे आपका ब्रांड लग के आना चाहिए. उनको बोलो कि आप थोड़े पैसे फालतू ले लो, लेकिन मुझे ब्रांड लगा के ही सैंपल चाहिए. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ चाइना, दैट वो ये कर देते हैं. Yes. थोड़े पैसे मांग लेंगे एक्स्ट्रा बट दे आर द वाइट लेबलिंग. दे डोंट, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको पैसे चाहिए अपने. अच्छा, और ये कौन सी जगह है जहाँ चाइना में सबसे पहले जाना चाहिए? शेंजन. दैट शेंजन एंड गॉन्जो, जहाँ फेयर होता है. वहाँ पे होता है सब कुछ, कैंटन फेयर. मैं भी गया हूँ इनफैक्ट. जिप शुरू करने से पहले मैं भी वहाँ गया था टू सी कि भाई ये कैसे चलता है पूरा IoT का वर्ल्ड. साइकिल्स जो पहली हम लेके आए थे, हम चाइना से लेके आए थे, टू बी वेरी फ्रैंक. और फिर हम ऑब्वियसली फिर हमने डिसाइड किया हमें ये नहीं आता, हम चाइना जाके इम्पोर्ट, कस्टम, वो सारा, वो भी बहुत ट्रिकी है. उसके बारे में बताओ. इज़ देयर एनी सीक्रेट सॉस टू गेट दीज इम्पोर्ट्स, कस्टम्स? बिकॉज ये लोगों को भी जानना ज़रूरी है अगर चाइना या फिर कहीं भी ग्लोबली काम कर रहे हैं. People are scared of customs, कि कस्टम ने अगर पकड़ लिया क्या हो गया. सो एट आवर लेवल वी नेवर गेट इनटू एनी मैल प्रैक्टिसेस कि हमने अंडर इन्वॉइसिंग करना, बिकॉज दैट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर बिजनेस. बट पीपल डू, येस. एंड अगर आप कर रहे हो ऐसा कुछ काम, तो यू शुड नो हाउ टू डू इट करेक्टली. यू शुड हैव द राइट पीपल, राइट चैनल टू डू इट. इफ़ योर बिजनेस रिक्वायर्स दैट, बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि आप चाहोगे तो आप बोलोगे मुझे सब कुछ क्लीन करना है, बट आपने अगर सदर में बेचना है, वहाँ धंधा ही पूरा ये है कि अंडर इन्वॉइसिंग का धंधा है. 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये में इन्वॉइस होती है. सो यू कैन नॉट
कैश बचाना कैश का जाना है मेन तो, सेकेंडली ड्यूटी अवॉइड होती है. सो अगर आप वो चीज़ 100 रुपये में मंगाओगे यू विल पे द हायर ड्यूटी. सो बट यू शुड नो द राइट चैनल टू डू दैट. So your sources and your entire supply chain has to be well stitched. Okay. Now let's talk about batteries, right? Since you are the man of batteries, you're one of the largest battery selling OEMs or brand, right? तो बैटरी में पहले लेड एसिड आया, फिर लिथियम आयन आया, अभी कुछ कुछ बैटरीज अलग अलग आ रही हैं. एल्यूमिनियम की बातें चल रही हैं, हाइड्रोजन की बातें चल रही है, सोडियम आयन की बातें चल रही हैं. तो क्या इलेक्ट्रिक है, क्या इलेक्ट्रिक नहीं है, पहले तो वो बताते हैं. और इनमें क्या स्टेबल होने वाला है आपके हिसाब से, बिकॉज यू आर द बैटरी मैन फॉर मी. सो इंडिया मार्केट में सिंस वी आर फ्रॉम, जब से शुरू हुआ तब से वी आर देयर. सो वी हैव एक्सपीरियंस कि टिल नाउ एज ऑन टुडे LFP इज़ वेरी स्टेबल. लिथियम फेरस फॉस्फेट. Phosphate, yes. NMC, yes, not very stable because of the tendency to catch fire. We are in a very hot country. Ab Delhi ka temperature is more than 50 now, and battery chamber ka temperature will obviously go more than 60, 70, and NMC is not designed for such high temperature. LFP is designed for high temperature. LFP doesn't catch fire. It might catch fire, but not as deadly as an NMC fire because of the cobalt which is inside, which is very very like fire. NMC में जो निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट, राइट, दैट्स द केमिस्ट्री. That's the chemistry. So very easy to catch fire, and जब आग लगती है तो एकदम से पटाखे की तरह फैलता है फिर वो. Which is why a few of the OEM scooters that we talk about, they caught fire. They caught fire. But आप भी इस बिजनेस में थे, आपकी भी कुछ बैटरी तो फटी. मैं नहीं बोलता हमारी बैटरी कभी नहीं फटी, ज़रूर फटी थी. But yes, we took corrective action. We learned from that mistakes. NMC बैटरियाँ बनानी बहुत कम कर दी हैं, ना के बराबर कर दी हैं. स्टार्टिंग में तो बनाई स्टार्टिंग में बनाई थी और आग लगी थी. आग लगी झूठ नहीं बोल सकते. रियल सड़कों पे. सड़कों में आग लगी, स्कूटर जल गए. शिट. तो क्या क्या रहा होगा मतलब उस समय, व्हाट वर यू गोइंग थ्रू? सो पहले तो क्या होता था कि आग लगती थी, एकदम से डर लगता था, ये आग लग गई. बट देन वी गॉट यूज टू इट, वी न्यू हाउ टू सॉल्व इट. वी ट्रेंड आवर पीपल कि अगर कभी आग लगती है किसी के स्कूटर में तो उसको एजुकेट करना है कि आग को कैसे बुझाना है. अगर आपको कुछ अगर लॉस हुआ है तो वी वुड कॉम्पनसेट दैट लॉस. चाहे आपकी बैटरी जल गई है तो वी वुड गिव यू अ न्यू बैटरी. सो ऐसे लोगों को एजुकेट करा धीरे धीरे करके. दैट्स वेरी टफ, राइट? इट वाज टफ जर्नी. बट अब हम उससे बाहर आ गए. अब हम उससे बाहर आ चुके. कैसे? Because of using new technologies, using a smart BMS, thermal management. So our batteries are designed in such a way. So अब जो नया rules आ गए हैं AIS phase 2, so that takes care a lot of such problems. उसमें batteries don't catch fire if your batteries are certified as per that. So there are chances but less compared to the पहले की क्या परसेंटेज थी और अब क्या परसेंटेज होगी आपके हिसाब से? So पहले तो there was no percentage count. Any battery was kept able to catch. It was very very hazardous. कभी भी कुछ भी हो सकता है. और you're living in a world of 0 probability और 100% probability. Yes. कोई भी ऐसा कुछ नहीं बोल सकता कि 100 में आग नहीं लगेगी और 1 में नहीं लगेगी. कुछ भी हो सकता था. और अब वो चेंज हो गया है. मतलब अब आप कह रहे हैं कि अब स्कूटर्स में जो भी बैटरियां लग रही हैं उनमें फायर उस टेंडेंसी से नहीं होगी. So phase 2 में we have not experienced any battery fire. करेक्ट. आजकल ये बातें भी मैंने नहीं देखा, न्यूज़ में भी नहीं आता. टच वुड, वी आर इन दिस बिजनेस. बट क्या चेंज हुआ है ये सब होने के लिए? So उसके अंदर they have added a lot of safety features. The BMS has been made with a lot of protections. It's a smart BMS. BMS is a battery management system. Fuse is added. The overall battery design is made in such a way that in case there is any fire in any one cell, it gets detached automatically. So ये overall सारे features, it was part of the standard, AIS standard में. Okay. And AIS is a standard launched by the government. Launched by the government. Automotive India Standard Phase 2. It was done in 2 parts, Phase 1, Phase 2. So Phase 2 वाले में it was very clearly जो पूरे guidelines इसने follow करी है. तो जैसे ही ऐसा कुछ होता है, टेम्परेचर ऊपर जाता है, अपने आप कट ऑफ हो जाता है. टेम्परेचर कट ऑफ हो जाता है. ओवर वोल्टेज होती है, टेम्परेचर कट ऑफ हो जाता है. इफ़ यू यूज अ रॉन्ग चार्जर इट विल नॉट चार्ज. सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स which were leading to the fire. Okay. No, that's good to know for people that now the batteries are much more safe because of the AIS standard. If it's AIS approved battery, it is a safe battery. तो आप ज़रूर चेक करें एज अ यूज़र कि आपकी AIS approved बैटरी है या नहीं.
right? And it'll not catch fire, most probably. That was the NMC technology. Now we've taken a step forward and one step ahead कि we have moved to LFP technology. So LFP में अगर आग पहली बात तो आग लगती भी नहीं है because they are designed for high temperature. They are designed for up to 60 degree discharge. NMC are designed for up to 50 degree discharge. So उसमें आपकी आग 60 डिग्री में तक आपके वैसे भी आग लगने के चांसेस नहीं है. सॉरी. उसके बाद भी अगर आपकी आग लगती है इट्स नॉट अ डेडली फायर. इट्स जस्ट लाइक बर्निंग अ पेपर. थोड़ा बहुत आग निकलती है एंड देन धुआं निकलता है, थोड़ी बहुत आग निकलती भी है, तो इट्स अ वेरी मतलब कि उसको बुझा सकते हैं आराम से. बट NMC फायर बर्स्ट लाइक अ क्रैकर. इट विल जस्ट स्प्रेड लाइक क्रेजी. I've seen the batteries flying. Okay. Got it. So LFP, NMC की बात करी. Let's talk about other technologies, right? And this is almost like a masterclass on technologies for people. So would love to. So new technologies are evolving, yes, but sodium ion was picking in a very rapid pace, but थोड़ा भी slow down हो गया चाइना में because LFP and the overall the batteries के prices have crashed because China built over capacity because China is very crazy for building the capacity. They have a lot of government supports. So रातों रात they will build the factories. They saw an opportunity in this business. और हर फैक्ट्री ने अपने आप को 3 times बना लिया. And now the demand in China is slightly dropped. The captive demand is slightly dropped because of which the battery prices have really crashed. So they are at record low. Really? Record low. कितना difference आया battery price में over the last? I would say it's almost, the cell prices have almost crashed by almost like 70-80%. 70-80%. The cell prices have crashed from the peak after COVID. I would not say from the record low, but yes, it was at a record low. During the COVID, it went to 2x. Then now it's again at record low. Just because China overproduced. But do you think that China is moving to a new technology is why this is coming down? नहीं अभी ऐसा नहीं है. So this is the only technology which is still prominent. NMC and LFP दो टेक्नोलॉजी चलती हैं मोस्टली अभी. NMC and LFP. More is LFP in China now. अच्छा, LFP is more because LFP is safe. LFP थोड़ी जगह ज़्यादा लेती है, but safer है than NMC. So one more technology which is coming is a mix of NMC and LFP called LMFP. Okay. इसका full form क्या होगा? So lithium, manganese, ferro, phosphate. Oh, so manganese is the new chemical which is getting added. Okay. So it's called the LMFP technology. It's a mix of NMC and LFP. It gives the advantages, the voltage range of NMC. The voltage range is 3.6. 3.2 जो होती है LFP की, इसकी 3.6 है, the nominal voltage. So again your the energy density is very very high, so you can pack more cells in a small space. And जो LFP के जो features है safety के वो इसमें है, so it doesn't catch fire like NMC. So wow, that's amazing. So it's compact. It's compact. And it has the safety features, LMFP. So is it now you're also shifting towards it? We are also started using it for few of our customers. And China में अच्छा है LMFP का demand? Yeah, it's just picking up now. They are also doing it. और future में क्या लगता है जो लोग हाइड्रोजन की बातें कर रहे हैं? So hydrogen will take a lot of time. Sodium ion. Why? Because hydrogen के लिए you have to build पहली बात तो प्रोडक्शन कैपेसिटीज, देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, देन फिलिंग स्टेशंस हाइड्रोजन के. क्या है थोड़ा सा समझाएंगे हाइड्रोजन को थोड़ा डेप्थ में? फ्यू. सो हाइड्रोजन के लिए द प्रोडक्शन प्रोसेस यू नीड टू बिल्ड इलेक्ट्रोसाइजर्स, सो जो उसको प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम वाटर टू हाइड्रोजन, एंड देन उसके बाद उसको फिलिंग स्टेशंस. अच्छा, बिकॉज इट्स लाइक अ गैस. इट्स लाइक अ गैस. एंड ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन सेल नहीं है. सेल नहीं, इट्स नॉट अ सेल. It's a gas which will be filled in your, like a CNG. It will be filled in your car or vehicle. And Japan is very much focusing on the hydrogen technology because they were a little slow on the electric vehicles. So all the Japanese cars, so there's no electric Japanese car. They are all hybrid because they were a little slow. They didn't caught this coming कि EV revolution आने वाला है. So they took a little backseat, and now they're feeling that ये हमसे गलती होगी, I think. So now they are focusing more on the hybrid. They are pressing the hybrid everywhere. But अभी इतना EV, and then the second what they're focusing is the hydrogen. But do you think that the EV revolution is real?
बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझसे भी ये सवाल पूछा जाता है, बट आई लव टू नो योर पर्सपेक्टिव. इज रियली द EV revolution global and real? So depends on the type of vehicle. Okay. For e-rickshaw, the three-wheeler, it is very, very real. All the pedal rickshaws have gone from the country. So I would say that EV rickshaw is the best EV use case which has happened in India. कितने ई-रिक्शाज होंगे इंडिया में? अगर सारे ओवरऑल काउंट करें तो more than 10 lakh e-rickshaws on the road. आज की डेट में लगभग 50,000 ई-रिक्शा तो पर मंथ नए बनते ही हैं. Okay. सो आई थिंक 10 लाख से ज़्यादा ही होंगे. E-rickshaw is real. What else? Electric two-wheeler for last mile would obviously make sense because all the government they are making mandatory कि आपका delivery will happen only on the electric vehicle because they can't enforce a normal consumer कि आप electric vehicle पे आ जाओ. So Delhi government can't say सबको कि आप it can't become like Norway कि आप सब electric vehicle पे आ जाओ. So that will be a very hard enforcement. But yes, for the last mile guys, they have a control. They can easily control them क्योंकि it's a regulated business, so they can control them कि आपको. It's a smaller opportunity to solve. You have to pick the top 20 players and make them move to electric. Okay. Do it or just go away. Which is what is happening in a few states. वहाँ पर ये होना बड़ा आसान है और ये हो रहा है. So Delhi has already enforced. Other states are also following. So they're doing it in a phased manner. Obviously, they can't enforce it ratorat, but yes, they're doing it in a phased manner. So I think you might have already seen the policy कि 20%, then 50%. Correct. Delhi aggregator policy. Yeah. So and because of that, so no new OEM or no new aggregator is buying a petrol vehicle now. So they're all उनको पता है आगे जाके चलना ही वही है. So why to use this one petrol vehicle? The cabs you are seeing कि अब Uber ने electric launch कर दिए. They know कि आगे जाके रातों रात enforce हो जाएगा तो they'll be forced to follow that. So they're already moving to electric cars now, electric taxis. So you're saying that commercial segment is now getting aggressive on electric, but do you think that personal will also somewhere? It will obviously depend on the use case कि उसका यूज़ केस क्या है क्योंकि इलेक्ट्रिक कार बंदा तभी लेता है जब उसका कोई प्रॉपर उसका यूज़ केस बनता है क्योंकि इलेक्ट्रिक कार थोड़ी सी महंगी है आज की डेट में दैन दी पेट्रोल कार. इफ़ ही हैज़ अ लॉट ऑफ ड्राइविंग डेली रन उसका ज़्यादा है दैन ही वुड ऑब्वियसली थिंक कि मैं इलेक्ट्रिक कार ले लूँ. नॉट कि मैं सोच रहा हूँ कि आई वांट टू बिकम वेरी कॉन्शियस सो आई वांट टू मूव टू इलेक्ट्रिक. शुरू में थोड़ा सा एक वो ट्रेंड आया था, एक वेव आई थी, पीपल वांटेड टू मूव टू इलेक्ट्रिक बट इट्स स्टार्टेड टेकिंग अ बैक फुट नाउ. So because there's a cost difference between the petrol and electric. I have 2 electric cars. I have a Tata Nexon and 1 more electric car. So I bought it out of passion कि हाँ, but since we are in this industry, so we must have an electric car. But not everybody is like this. तो EV कार जो आपने चलाई, आपने 2 EV कार ली हैं वर्सेस आपके पास पेट्रोल भी आपने चलाई है, तो what is better? What is the difference? Obviously electric car is better. The punch is better and obviously there's एक वो है ना कि रोज मतलब कि रात को चार्ज कर लिया दिन भर चलाओ, कोई पेट्रोल भरने की कोई स्ट्रेस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है. एंड एक्सेलरेशन इज बेटर, द पिकअप इज़ बेटर, देयर इज़ नो सर्विस. सो आई सेंड माई कार फॉर सर्विस एंड 80 रुपीज़ का बिल आया सर्विस कराने का. That's it? Yes. Wow. तो बिकॉज मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं है, देयर इज नो ऑयल, देयर इज नो फिल्टर. वाओ. बट बैटरीज आर गुड फॉर EV कार्स. आपने EV कार की बैटरी कभी नहीं सोची अभी तक? So we are not in that industry now. Maybe going forward we might do that, but अभी नहीं. And what about sodium and aluminum? उनका क्या विचार है? So sodium, yes, sodium. I was talking about sodium. बीच में बात रह गई. So sodium ने एक step लिया था enter करने का, but suddenly as the LFP battery prices crashed in China, so it was expected कि sodium ion will be cheaper. So it's always जो economic होगा वही चलेगा. So sodium ion ने enter किया space, but LFP crashed suddenly. So sodium ion took a back foot away. Sodium ion was expected to be cheaper than LFP, but एकदम से because of the overcapacities in China for LFP, prices have crashed. Okay, got it. And तो ये सारी हुई बैटरीज की बातें, राइट? अब आप ये बताइए कि बिजनेस में जैसे आपका एक बिजनेस है जो कि स्टार्टअप से बहुत डिफरेंट है. हम लोग फंड रेज करते हैं,
हम लोग इक्विटी देते हैं. योर बिजनेस इज एन 18-year-old बिजनेस which is fully owned by you and the family. So what do you think of startup world as being, you know, a legacy traditional business in that sense, if I might call it? It's totally a different type of business. आपको पैसा it works on different economics altogether. You build valuations, then you divest equity or whatever, then you grow your business. Whereas we have been working on a traditional way of running the business कि थोड़ा बैंक से लोन ले लिया, थोड़ा अपना इक्विटी डाल दी, काम करा, बिजनेस ग्रो करा. But yes, now we want to take a quantum leap, so we need to go for a bigger round of funds, and we can't just depend on the bank loans. So now we're going for an IPO. Oh wow. So now Trontech is going for an IPO. Wow. So already ready, profitable. आपका कितना प्रॉफिट होता है बिजनेस में? So we work at an average gross profit of 10%. ग्रॉस मतलब पैट 10% का होता है और ग्रॉस मार्जिन? ग्रॉस लगभग 15% के आसपास. अच्छा, 15% का ग्रॉस मार्जिन होता है, विच इज़ माइनस योर कॉग्स ऑफ बिल्डिंग द प्रोडक्ट. और उसके नीचे क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट और Depreciation, taxes. टीम वीम कुछ होती है, मार्केटिंग? So marketing team की कॉस्ट ज़्यादा नहीं है. नहीं है. It's nominal. दैट इज़ हाउ द ट्रेडिशनल बिजनेसेस आर. और हम लोग जो हैं We are conservative about the manpower cost. स्टार्टअप वाले टीम और मार्केटिंग पे ही शायद फंडिंग करते रहते हैं कि हमारे को प्रॉफिट तब आएगा जब ये टीम सही बन जाएगी और मार्केटिंग सही हो जाएगी. बट यू गाइज आर ऑलरेडी, बट इन अ वे जब आपने बताया कि जब मैंने लिथियम आयन बैटरी डाली, यू ऑलमोस्ट डिड द जियो स्ट्रैटेजी. आपने कहा कि सस्ती बेचते हैं, लोगों को आदत लगाते हैं, फिर अगर आदत लगेगी तो प्राइस थोड़ी बढ़ाएंगे, फिर और आदत लगेगी, वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा तो प्राइस नॉर्मल हो जाएगा, और वहीं पे सब्सिडी आ गई जिसने आपकी हेल्प कर दी. बट बिजनेस में वो करना पड़ता है. बिल्कुल, वो तो उसके बिना तो फायदा नहीं, कुछ हो ही नहीं पाएगा. मतलब यू कांट गेट इनटू दैट समथिंग न्यू. तो फिर आप वो बेचते रहते लेट एसिड आज की डेट में, व्हिच अदर पीपल आर डूइंग. आई थिंक स्टार्टअप भी वही होप है कि हम अभी डिस्काउंट देते हैं. बट हमने कोई बहुत लंबा तो दिया नहीं था. वी न्यू इट कि हमने खाली टेस्ट लगाना है खाली. दैट इज़ द डिफरेंस. वो जो बट स्टार्टअप तो चलता ही खाली उस पर ये है कि आप लोग तो पैसे गवाते ही रहते हो. ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि वो टेस्ट लगाने के लिए आपने 3, 4, 5, 6, 7 महीने के लिए किया, बट ये नहीं कि बिजनेस ही 7 साल के लिए टेस्ट ही लगाया जा रहा है. फिर तो हम खत्म हो जाएंगे. दैट इज़ व्हाट हैज़ द प्रॉब्लम इन द स्टार्टअप वर्ल्ड, वेयर कि आपको एक कस्टमर को टेस्ट नहीं लगा, आप दूसरे को लगा रहे हो, बट वो कोई ऐसा रुक ही नहीं रहा. एंड दैट्स व्हाट यू मस्ट बी थिंकिंग सिटिंग. हाँ, आपको कैसा लगता है ये स्टार्ट? मुझे तो एक समझ नहीं आती इकोनॉमिक्स इनकी, तो स्टार्टअप वर्ल्ड की ये करते कैसे काम, ये लॉस 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 कैसे हो, क्या रहा है ये? ओनली वैल्यूएशन वैल्यूएशन वैल्यूएशन. नहीं, आई थिंक यू आर राइट फ्रॉम अ लेंस की देयर हैव बीन, दैट इज़ द ट्रेंड विच हैज़ बीन फ्लोइंग इन 2021, 22. बट अब टू बी वेरी फ्रैंक समृत, ये चेंज हो रहा है, राइट, वेयर नाउ द बिजनेसेस आर बिकमिंग प्रॉफिटेबल. फाउंडर्स आर ओनली ट्रैकिंग पैट और एबिडा, और कोई बात ही नहीं है स्टार्टअप वर्ल्ड में. तो थैंकफुली वो मैच्योरिटी साइकिल अब आ रही है. क्योंकि जिसके पैसे लगे वो भी अल्टीमेटली चाहता है कि मेरे को बाद में पैसा तो चाहिए ना, पैसे से पैसा ही बनाना है मुझे. मैं किसी के शौक को पूरा नहीं करना चाहता. तो स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप वही है कि भाई आप फंड करो, कस्टमर को डिस्काउंट दो, आदत डालो, उतनी आदत डालो कि वो स्टिक रहने लगे, और वो फिर आदत डाल के आपको पैसे देने लगे. ठीक है, वो आदत आप मतलब डालते जा रहे हो, आप पैसा बर्न करते जा रहे हो. बट जिस समय आपकी प्राइसिंग वैसी आ गई कि जब वो आपके कस्टमर से पैसा निकाल के शेयर होल्डर तक पहुंचने लग जाए, तब वो स्टार्टअप बिजनेस बनता है, आई थिंक. एंड नाउ वी आर इन दैट एवोल्यूशन जर्नी, मुझे ऐसा लगता है. प्रॉफिट इज द की. आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे नॉर्मल कन्वेंशनल बिजनेस हो. प्रॉफिट ही सब कुछ है. समझ आ गई ये चीज़. आपकी दिनचर्या क्या रहती है? मतलब दिन भर कितना काम करते हैं, कितना टीम के साथ? हाउ डू यू मैनेज योर स्केड्यूल्स? So I start working when I get up, and I stop working before I sleep. 365 days a year. छुट्टी लेते होंगे, कुछ हॉलीडे पे जाते होंगे? वहाँ भी काम कर लेते हैं. अच्छा. मतलब काम तो हर जगह चलता रहता है. एज अ बिजनेसमैन, वन थिंग इज क्लियर, देयर इज नो हॉलीडे, देयर इज नो संडे, देयर इज नो नाइट. योर माइंड इज ऑलवेज वर्किंग. नाइस. आप ये बताइए कि अगर चाइना की इतनी डिपेंडेंस है ईवी पे, इज़ दैट द रीज़न जो इंडिया में बड़े OEMs अभी भी घुस नहीं रहे हैं? जैसे 2 व्हीलर में भी हम देखें,
we don't see the large OEMs being very aggressive. What is the reason? So large OEMs are getting into the space, yes, but it has nothing to do with China. It is just कि acceptance and customer का जो भी requirement है उस हिसाब से it will take some time for the electric scooters to become, at least I would say अभी आज की डेट में the market is 3% or 5, I think it's 5% now. But for everything, it will take a gradual shift from IC to electric vehicle. Why is that? Why? Again, the cost factor, लोगों की cost is high. लोगों ने कई जगह cost match भी कर दी. से Ola has brought the cost as good as the Activa, but still trust factor कि चलेगा नहीं चलेगा. So उस वजह से एक्सेप्ट कोई चीज़ नहीं चलाती, एक्सेप्टेंस के लिए टाइम लगता ही है. मुझे एक बात बताओ समर्थ, आप बैटरीज में हो पिछले 14-15 साल से, आप ऐसा, और आप चाइना से भी इंटरेक्ट करते हो बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग दो सेल्स, बट ऐसा क्यों नहीं है कि ये इनोवेशन कहीं और नहीं हो रहा? मतलब ये LMFP भी चाइना में ही बना, सोडियम भी चाइना में ही बन रहा है, NMC भी चाइना में बना. So what Gulf is to oil, China is to the lithium ion. अच्छा. So they understood this way before anybody else in the world. So उन्होंने electric vehicles, so now you go to Shenzhen, you would see 70-80%, I would say, मेरे को तो ज़्यादा दिखती है, but I would not say 70-80% cars on the road would be electric, green number plate cars. Really? Taxis are electric, BYD की सारी taxi है blue color की with green number plates. There is no electric two-wheeler on the road. There is no petrol too. Sorry, there is no petrol two-wheeler, not even one. Not even one petrol two-wheeler on the road in Shenzhen. They are all electric two-wheelers which are moving on the road. Taxis are all electric. Personal cars are all, I would say, 60-70% electric. Buses? Buses are all electric. All electric? All electric. Buses are all electric. Trucks are not electric. Because truck need a high load carrying capacity, so they are not electric. So China ने ये इसको पहले बहुत जल्दी इसको समझ लिया था. And obviously they knew it कि ये revolution आ रहा है. So उन्होंने क्या करा कि around the world जहाँ जहाँ metal ये थे, lithium, cobalt, manganese, जो भी nickel, जहाँ जहाँ थे, उन्होंने mines underwrite कर दी for long time के लिए उसको. Even though the metal is not produced in China, अगर वो अफ्रीका में होता है या अर्जेंटीना में होता है या ऑस्ट्रेलिया में होता है, so mines are already underwritten by Chinese, and 70-80% of the raw material is processed in China. Up the processing setup is more than 10,000 crores per setup. So it is impossible for any country to set up a metal processing setup जब उसको डिमांड ही नहीं है. चाइना ने ऑलरेडी ये सब क्रिएट कर दिया इकोसिस्टम पूरा. तो कोई ब्रेक कर पाएगा चाइना की मोनोपोली इन द EV सेगमेंट? देखिए गल्फ ऑयल को अभी तक कोई ब्रेक तो कर नहीं पाया. बट US हैज नाउ द लार्जेस्ट ऑयल रिसोर्स. सो मैं कह रहा हूँ यस, लेकिन ओपेक तो ओपेक ही है ना. सो इट विल टेक सम टाइम. US is fighting really hard on this subject, and अभी उन्होंने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट अभी लॉन्च किया है, in which they've clearly mandated कि anything which is coming from China will not get the subsidies, the IRA benefits, even though it's coming indirectly. अगर आपने materials अंदर use कर रहे हैं which are coming through Chinese suppliers or something, it will not get the IRA benefits. America is trying to make it, trying to build their facilities, but it will take at least 10 years to have that kind of ecosystem. But China has done in 10 years now. रातों रात कुछ नहीं होता. ना बिजनेस बनते हैं ना ऐसे इकोसिस्टम बनते हैं. एंड आप अगर देखें तो आपका बिजनेस में विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन योर बिजनेस? Lithium and cells. Cells are the most important. Yes. And that's what we import from China now. Everything else is local now. Okay. और आपकी टीम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? Because you are in a way a slightly different business. So we have R&D people. We have a team of around 25 R&D engineers. So we have production people. We have the people from the sales and marketing team. And we have a wide service team, close to 120 people working only in service. Who are manufacturing this? No. Give the after service for the batteries. After sales. Yeah, after sales. So we have traveling engineers across India to give service for the e-rickshaw batteries.
Then we have our service centers across India, in Bombay, in Chennai, Calcutta, Delhi itself. Yes. अगर किसी यंगस्टर को ईवी इंडस्ट्री में बिजनेस बनाना है, डू यू हैव एनी आइडियाज फॉर देम? क्या कर सकते हैं? So EV में there is a lot of opportunity. Now he wants to build a scooter, he wants to build a e-rickshaw, he wants to do any part like a motor or a controller or a charger or a battery. So it really depends कि उसने करना क्या है EV के अंदर. Opportunity बढ़ती रहेगी या opportunity आती रहेगी. ये सारी अपॉर्चुनिटी अभी भी ओपन है आपके हिसाब से? It is not कि सबने किसने सैचुरेट कुछ नहीं हुआ अभी तक हुआ. आज भी नई कंपनी ई स्कूटर की आएगी, they will do business. They will get a share of business. सो आप सप्लाई चेन में घुस जाओ ईवी की, वो बिजनेस हो सकता है. ओके. आई वांट टू नो अबाउट दीज बैटरी रिसाइकलिंग. ऐसा बहुत आर्टिकल्स में आता है कि लिथियम आयन इज़ अ मेनेस, क्योंकि रिसाइकलिंग का कोई ध्यान नहीं रखता, एंड इट्स अ बिगर मेनेस टू क्रिएट मोर पोल्यूशन. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? So it's just like electronic waste. आप जो इलेक्ट्रॉनिक यूज लैपटॉप्स कंप्यूटर्स टीवी व्हाट वी यूज़ उसका भी वेस्ट निकलता है एंड देर आर गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड टू रिसाइकल देम एंड दे पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द मैन्युफैक्चरर. इट्स कॉल्ड द EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. So in this lithium ion cells, the similar lithium ion cells and lead acid batteries both. So same EPR has been imposed. So the manufacturer has the responsibility to get the lithium ions and the battery packs recycled from a registered recycler. ओके, दैट्स यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. We are responsible. तो क्या करते हैं आप? जैसे बैटरी का वेस्ट होता है, बैटरी जब आ जाती है खराब, So they give it to a registered recycler, उसको recycle करते हैं वो. वो क्या होता है प्रोसेस? वुड यू टॉक अबाउट इट? So I am not very clear, but it's mostly like a shredding process. They would shred it into pieces and then take out the metals from that. And जितना रिकवरी हो जाती है वो they use it. तो आप स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते हैं इंडिया के? See, startup world, मेरे को उस साइड का पिक्चर ज़्यादा पता नहीं है अभी, बट what I hear, what I see, it's basically कि buildings built हो रहे हैं based on valuations, and then as you mentioned that it's moving towards profitability now. See, obviously startup, government is also promoting startup. Mr. Modi is also promoting startup ecosystem. So उसके बिना तो काम होगा ही नहीं. Anything startup means anything new idea, new business. So उसके बिना तो धंधे होने भी नहीं है. करेक्ट. आई एम श्योर आप ऊबर, जोमेटो ये सब यूज़ करते होंगे, राइट? एंड अगर स्टार्टअप्स नहीं होते तो शायद, तो ये सब होता ही नहीं. Yes. yeah, and they have created a new business now and they are now becoming profitable. So yeah, from that lens. But अगर आप मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप कोई स्टार्टअप बनाना चाहो तो किस स्पेस में बनाओगे? कभी सोचा नहीं था. आज ज़रा सोच के देखते हैं. वेरी हार्ड क्वेश्चन. कभी सोचा नहीं था इस बारे, क्योंकि अभी दिमाग पूरा ना बड़ा फोकस्ड क्लियर अपना धंधा है, बैटरी करनी है. नहीं, अच्छा है, फोकस ही होना चाहिए सोचने में. आप डाइवर्ट ना हो जाओ. इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू कीप मेकिंग बैटरीज, which is great. And you see the future of EV to be strong? Yeah. See, sooner or later वो तो होना ही है. डिफरेंट सेगमेंट्स, बसेस में हो चुका है, ऑल द कमर्शियल व्हीकल्स में हो चुका है, बट पर्सनल व्हीकल्स में इट टेक्स ग्रेजुअली होगा, वो थोड़ा इट टेक्स सम टाइम. And the biggest reason why this shift to electric will happen according to you? What is the biggest reason? Couple of reasons. जैसे इसमें कमर्शियल व्हीकल्स में तो मैंडेट फ्रॉम द गवर्नमेंट हो जाएगा. पॉल्यूशन ऑब्वियसली, अब ये जो इतना डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, सभी बिकॉज पॉल्यूशन ही हो रहा है सब कुछ ये. एंड फॉर द पर्सनल व्हीकल्स इट विल बी ओनली ऑन द कि कस्टमर कितना जल्दी इस पे आता है, उसको कितनी जल्दी समझ आती है कि हाँ मुझे इलेक्ट्रिक पे जाना है. कॉन्शियस डिसीजन नहीं होगा कि हाँ मुझे इलेक्ट्रिक करनी है, अदरवाइज तो कोई शौक से तो अभी कोई लेना चाहता नहीं कि हाँ मुझे, Because it's expensive. एक्सपेंसिव दैन द IC वर्जन. और उसका रीज़न वुड यू नो वाई इट इज़ सो एक्सपेंसिव देन द IC इंजन? द कार स्पेशली जो 10 लाख की नेक्सॉन आती है वो 15 लाख की बन जाती है, आप इलेक्ट्रिक ले रहे हो, ऐसा क्यों? आई थिंक उसमें अभी यूनिट इकोनॉमिक्स ऐसे कम है, वॉल्यूम कम है. वंस द वॉल्यूम ग्रोज, चाइना में तो आज क्यों कैसे हो रही है, चाइना में तो आज पेट्रोल गाड़ी सस्ती महंगी है और इलेक्ट्रिक सस्ती है. रियली? यस. सो इट्स ऑल अबाउट द यूनिट इकोनॉमिक्स. जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो दे विल एंजॉय इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल. आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता है लाइफ में? आपको इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन, हाउ डू यू फाइंड दैट? सो मोटिवेट तो मेरा
there are few leaders which motivate me. Can you name them? Mr. Modi is obviously मुझे motivate करते ही हैं for Indian ecosystem, and he's promoting the overall ecosystem for electric. नहीं, that's right. और how do you balance work life? कुछ ऐसा है work life balance आपके लिए कुछ है? It's only work. अच्छा, मतलब ये बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आजकल. लाइक इन द करंट जनरेशन दे लुक अ लॉट वर्क लाइफ बैलेंस वर्सेस द अर्लियर जनरेशन हु वैल्यूड वर्क अ लॉट मोर. आर यू सीइंग दैट ट्रेंड? जैसे आप भी यंगस्टर्स को हायर करते होंगे, उनमें वो है वर्क एथिक? उतना नहीं है. वो कहते हैं कि हमें तो सिर्फ 5 days वर्किंग चाहिए, वी विल वर्क ओनली फॉर 40 hours a week. So वो थोड़ा बहुत तो वी आर सीइंग दैट काइंड ऑफ डिमांड्स फ्रॉम द न्यू पीपल व्हाट वी हायर. बट वो आपके डीएनए में नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. आई वुड गेट बोर्ड. अगर मैं सैटरडे करने को कुछ होगा नहीं, क्या करूँगा मैं? Yeah, that's what even I feel that when it happens on a weekend, और अगर वीकेंड पे हम नॉन वर्किंग हैं तो संडे की शाम तक मुझे फोमो होने लग जाता है कि बहुत डिस्कनेक्ट हो गया है बिजनेस से. अब मुझे जल्दी से मंडे का एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि काम पे वापस जाना है. बिकॉज वो नशा जो है आपको लोग यहाँ पर जो आपके अपने ऑफिस में जो एक एनवायरनमेंट है, हमेशा आपकी जो पूरी फैमिली, जो आपका बिजनेस है पूरा, जो मतलब द बिजनेस फैमिली जो आपके आसपास लोग रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है इंटरेक्शन उनके साथ. सो यू मिस दैट कि मुझे उन लोगों से मिलना है, बातें करनी है, रोज़ कुछ ना कुछ करना है, उनके साथ इंटरेक्शन करनी है. सो इफ़ यू डोंट डू दैट, सो आपको फोमो तो हो गया होगा. वो आपको भी होता है? बिल्कुल. जैसे बैटरीज होती हैं, उनमें बहुत लोग बोलते हैं कि बैटरीज पोल्यूशन क्रिएट करती हैं. बट what do you have to say? You are the battery person. How does the battery recycling happens, and is there a real pollution happening out of it, or No. So batteries are, if you talk about the lithium-ion batteries, so they go through a recycling process. So there are a couple of recyclers which have come up in the country now, and it's become a very, very huge business because all the batteries are going end of life, so they have to be treated in a manner which they are designed to be. So even for us, so any scrap battery, any end of life battery, we sell it to a registered recycler. They would take the battery to their recycling center. The batteries will go through a recycling process, which includes firstly shredding. So batteries are shredded, cut into pieces, and then the metals are extracted. The precious metals are extracted from that, which there are couple of processes which are followed, and then the precious metals which were put in the cells are recovered. So lithium or cobalt or all those metals are recovered. Black mass. So first the black mass is recovered, and then from the black mass the metals are recovered. segregation happens, and then they go back into new batteries by creating new cells? Yes. Right? Yeah. इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है कि बैटरीज का बहुत अच्छा रीपर्पसिंग भी हो रहा है, कि एक स्कूटर की बैटरी पहले स्कूटर में चलती है, फिर जब वो थोड़ी वीक हो जाती है तो वो सोलर सेल्स में चलती है, फिर वो और वीक हो जाती है तो वो टॉर्चेस में चलती है, फिर वो और वीक हो जाती है तो फिर रिसाइकिल. सो उसका रीपर्पसिंग का अलग से एक बिजनेस है कि बेसिस द स्टेटस ऑफ द बैटरी, उसका भी स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है. सो एनी रिसाइकलर और द रीपर्पस पर्सन, ही वुड टेक द बैटरी, दे वुड मेजर द स्टेट ऑफ हेल्थ, उसकी क्या है अभी. Based on that, they would put it to different use. So there is no standard कि ये वाली बैटरी सीधा डायरेक्ट इसमें यूज़ हो जाएगी. So जिसकी लाइफ अभी थोड़ी बची है उसमें कहीं और यूज़ कर लेंगे. मे बी इट विल बी यूज अगेन फॉर अ 2-wheeler. अगर उसमें लाइफ 80% बची हुई है, अगर उसमें लाइफ 50% बची हुई है, दे कैन यूज़ इट फॉर अ सोलर एप्लीकेशन. अगर और कम होगी तो इसमें दे कैन यूज़ इट फॉर टॉर्चेस और समथिंग. But this is happening. This is happening for sure, yes. Because this makes sense than just simply recycling. Absolutely. So the recovery is better in repurposing than recycling. Recycling तो आपने बेच दिया per kg के हिसाब से. But here you are able to get a more value. Yes. No, I think that's also a big business opportunity for people who are looking at listening to this podcast, that you can create a full journey of 2-wheeler batteries going into the next life, and then give it to the recycler. चलिए समर्थ, आपसे आई थिंक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आपका सबसे फेवरेट
पंजाबी गाना कौन सा है? So my favorite singer is obviously Diljit Dosanjh. अरे वाह. So all his songs are my favorite. And who's the second best? No second best. हमेशा एक ही रखना चाहिए बस. Lovely. I think I enjoyed the conversation. Thank you so much, Samarth, for sharing amazing insights on Thank you for inviting. and the business world, जो कि एक अलग है, स्टार्टअप नहीं, बट ये IPO की तरफ जाने वाला प्रॉफिटेबल बिजनेस है. So lot of learnings. Thank you so much.